Hello students, good morning. I am your Jamil sir, going to teach you class 10 physics. Your chapter reflection of light is continue here. Okay student. Now in this video we are going to discuss about the image formation by the spherical mirror. In the last video I have also discussed some ray diagrams, means image formation by the concave mirror. In this video we are just going to discuss by the convex mirror how we can obtain the image. Okay. In the convex mirror there are only two conditions. In the concave mirror we discuss about the 6 conditions for the image formation by the object different places. Okay. Now here is first case is here, if or when the object is at infinity, when the object is at infinity, means infinite. फर्स्ट केस में here this is the which type of mirror, convex mirror. क्या है ये? convex mirror. डिस्कस करते हैं इसको. this is the pole, suppose here is the pole, this is the principal axis and here is the focus, this one is the center of curvature. Okay student. Now when the object is at infinity, हमने बताया when the object is very distant object, then the rays coming from the object, means the light rays emerges by the object is just like parallel rays. Okay, so all the rays will be parallel when the object is at infinity. So here incident ray is parallel to the principal axis. You take the incident ray is parallel to the principal axis. When the incident ray is parallel to the principal axis, after reflection it appear to come from the focus. तो ये focus से मालूम पड़ेगा कि यही focus से ही आ रहा है. It is reflected here. ठीक है. This is the incident ray, here is the reflected ray, but it is just appear that it is coming from the focus. Okay. Similarly, this is parallel ray. After reflection, it is appear to come from the focus. Very good. This is coming from the focus. Then after रिफ्लेक्शन इट इज अपीयर टू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट F. तो हमने बताया इमेज फॉर्मेशन में व्हेन 2 or more rays आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट. दैट इज साइज ऑफ इमेज. हियर इज दिस इज द इमेज फॉर्मेशन वेयर वी ऑब्टेन द इमेज एट द फोकस. तो आ जाते हैं कि नेचर ऑफ इमेज पे. What is the nature of image? Nature of image. कैसा नेचर बन रहा है? First thing is this is which type of image? Virtual, because of the light is not really intersect. This is appear to come from this particular point. Okay, this is the virtual image. And कैसा इमेज होगा? Virtual है तो always erect होगा. Erect means सीधा होता है. Erect. ओके, इरेक्ट होगा. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इमेज? बिल्कुल पॉइंट साइज को होगा, फोकस पे मिल रहा है तो. हाँ, हाईली डिमिनिश्ड. क्या बोलेंगे इसको? हाईली डिमिनिश्ड. ओके, हाईली डिमिनिश्ड का सेंस क्या है? दिस इज पॉइंट साइज. पॉइंट साइज. ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि पोजीशन ऑफ इमेज. What is the position of image? Position of image कहाँ पे मिल रहा है इमेज? At focus. At focus. Okay, you are getting now. And second condition, अभी देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? At infinite है. When object is at, second में when object is एट प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ले लिया. तो देखो क्या होगा. सॉरी, हियर इज द कॉन्वेक्स मिरर. तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज पोल हियर एंड हियर इज द, क्या होगा? Suppose this is the focus here and here is the center of curvature. Okay, and proceed this principal axis
हियर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो होना है, सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में ही तो ऑब्जेक्ट को होना है एट द प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा है, एट द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सपोज हियर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम इज ए बी। ओके स्टूडेंट, तो विच टाइप ऑफ रे वी आर गोइंग टू टेक हियर, फर्स्टली यू टेक विच टाइप ऑफ रे लोगे, फर्स्ट रे ले लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when the rays incident ray is parallel to the principal axis then after reflection it appear to come from the focus, अभी हमने बताया, पहले भी बता चुके हैं। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चला जाएगा। सेकेंड रे यू कैन टेक इट इज अपीयर टू इंसिडेंट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले लो आप ऐसे, सपोज इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो क्या आ रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड along the same path, ठीक है, मीन्स इट along the मूविंग along the same path, तो उसी पाथ पे ये रिटर्न हो जाएगा ऐसे ही। देन इट इज अपीयर टू इंटरसेक्ट हियर, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन यू ऑब्टेन हियर इज द इमेज। ओके, दिस इज द इमेज, इमेज ए डैश बी डैश। ओके, देन नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बताओ, नेचर ऑफ इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल ही होगा। देखो अपीयर टू का डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ, अपीयर हो रहा है, वर्चुअल होगा। नेक्स्ट क्या है, कैसा है, दिस इज इरेक्ट, ये भी ऐसे ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, इरेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल इन साइज, इन साइज छोटा है, मीन्स इसको कह सकते हो डिमिनिश्ड। ओके, एंड पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन कहाँ पे बन रहा है इसका, पोजीशन ऑफ दिस इमेज, पोजीशन देखो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो दिस इज द बेसिकली टू रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, ये दो रे डायग्राम है। एक क्वेश्चन अभी और पुटअप हो रहा था हमसे कि व्हेन द दिस रे यू कैन टेक स्ट्राइकिंग एट द पोल, जब ये स्ट्राइकिंग एट द पोल तो क्या इमेज वहीं पे बनेगा, यस एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देख लेते हैं उसको भी जरा सा, यहीं पे देख लेते हैं। सपोज दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, आ जाते हैं इस पर। देखो ये सेम होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट को स्टैंड कर दिया एट द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज ए बी, हियर इज कॉन्वेक्स मिरर, हियर इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू टेक फर्स्ट रे डायग्राम, पैरेलल रेज, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, बिल्कुल यही। सेकेंड रे आ रहा है क्वेश्चन कि क्या इसको पोल से भी ले सकते हो, यस यू कैन टेक दिस एट द पोल, देन आफ्टर व्हेन द रे इंसिडेंट एट द पोल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स सेम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस एंगल पे ये स्ट्राइक किया था वही सेम एंगल ये बनाएगा भी, तो ऐसे आएगा अप्रॉक्सीमेटली सेम एंगल इज दिस, ठीक है। देन क्या होता है, यू हैव टू प्रोसीड दिस बैक साइड, दिस रे रिफ्लेक्टेड रे बैक साइड, देन you obtain here this is intersecting, in the intersecting point is the image formation point, draw perpendicular from this, then you obtain a dash and b dash, you obtain image between pole and focus, again वही सेम साइज के इमेज होंगे, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। when the object is placed in front of the reflecting surface at the principal axis for the convex mirror. Okay student, तो this is the basic ray diagram for the convex mirror and the concave mirror के लिए लास्ट वीडियो आप देख के उसको आप समझ लेना, ठीक है। if you have any doubt you can WhatsApp to me and also comment on the channel, okay। और जुड़े रहिए, चैनल से भी जुड़े रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग। चलो अच्छा देखते हैं हम लोग next is here sign convention, we have to understand about the sign convention, साइन कन्वेंशन को समझेंगे, देन आफ्टर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर।
साइन कन्वेंशन इसका लेते हैं। देखो साइन कन्वेंशन क्या होगा, सिंस यू नो दिस इज द क्वाड्रेंट, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। इन दिस कार्टेशियन प्लेन दिस इज द प्लस एक्सिस, हियर इज माइनस एक्स एक्सिस, हियर इज वाई एक्सिस, हियर इज माइनस वाई एक्सिस। सपोज you are taking here, this is the concave mirror, concave here, ठीक है, and you are taking here, this is the convex, okay, this is the convex, ठीक है, and the object is placed on the in front of the reflecting surface। इसका भी reflecting surface इधर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, लुक कर रहा है, इसका भी reflecting surface इधर की तरफ ही लुक कर रहा है। मीन्स the data in front of the reflecting surface, or you can say the data left side to the pole is always taken as negative। कैसा लेंगे इसका, नेगेटिव डेटा लेंगे, ठीक है, नेगेटिव, okay student, and all the data which is right side to the pole means behind the mirror is taken as positive। ये बात आ गई सबको समझ में, कंफर्म है? तो देखो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर में कॉनकेव का फोकस की क्या होगा हमारा, फोकस कैसा हम लेंगे, ऑलवेज निगेटिव। वाई, बिकॉज दिस इज द लेफ्ट साइड हियर फोकस। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर this is also taken as negative। and position of object it is taken as negative। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, taken as negative, ठीक है। and position of image इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है दिस इज टेकन एज निगेटिव, एंड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड है देन दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। निगेटिव है इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके स्टूडेंट, एंड v इज टेकन एज पॉजिटिव कब, बिहाइंड मिरर, ओके, समझ में आ रहा है? फॉर द कॉन्वेक्स के केस में देखो, कॉन्वेक्स में हमें क्या मिलेगा, द डेटा फोकस इज पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो पॉजिटिव, यानी f इज इक्वल टू पॉजिटिव। u इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव बिकॉज ऑफ u इज टेकन इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव, ओके। एंड इमेज फॉर्मेशन इसमें क्या हो रहा है, हमेशा राइट साइड में होगा, देन v इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव। दो ही केस थे, दोनों केस हमने बता दिया। देन स्टूडेंट्स दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर दिस, एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न फार्मूला, फोकस फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, फोकस फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर क्या है, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ओके स्टूडेंट, वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द पोजीशन ऑफ इमेज एंड u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो दिस इज द बेसिकली साइन कन्वेंशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the linear magnification and some numericals related to the spherical mirror, okay student, complete your notebook, and if you have any problem then you can comment on this channel, okay student, okay.